my screen, right? Yes, yes. Okay, so today we'll look at this especially the SQL database, but there are three types of at a higher level there are three types of database: SQL database, NoSQL database, and unstructured database. So SQL database uses relational database model. So when you say relational database model, means relation. The word relation means there are tables. Tables have rows and columns, and the columns they can be related to each. All are connected, right? They're related. Like the one table is connected to the other table using a foreign key. So those kind of stuff. So all that concepts comes under RDBMS. So whatever databases are using RDBMS, the concept will be same: tables, rows, columns, primary keys, foreign keys, etc. So which are those databases? Oracle, SQL Server, Postgres, AWS Aurora, so these are basically your RDBMS. And MariaDB is a software which has both SQL and NoSQL support. So SQL is very structured. You have to design it. Before you use it, you have to go and create a table. You have to create a database. You have to create a fields. You have to define whether it is not null, plus null. All those conditions, whether it is a foreign key or to some other table, all those has to be defined before you actually use it. So it is like you need to you cannot just start using SQL without creating it. So there's a design time involved, and if there is any problem with the design in the beginning, they didn't define some column, you had to add a new column, then again go, and if the data is already there in the database, then it becomes very difficult to modify the database for because you need to make sure the existing data is not corrupt, is not lost. You cannot lose any data while you are redesigning or something. So it is a very it's an additional step, and it is time consuming. It is not flexible to change. So any questions so far, whatever I spoke about SQL, the problems of SQL? हेलो, Yes, sir. हाँ, कुछ आपको एनी क्वेश्चंस ऑन, आपको SQL का प्रॉब्लम समझ में आ रहा है? क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं? हाँ सर, वही मैं देख रही. सो प्रॉब्लम क्या क्या है मुझे बोलो SQL में. तो SQL में सिर्फ स्ट्रक्चर डेटा यूज कर सकते हैं. हाँ, लेकिन प्रॉब्लम्स क्या है SQL में? प्रॉब्लम्स क्या क्या है? SQL का एडवांटेज है कि वो स्ट्रक्चर्ड है. हाँ, वो स्ट्रक्चर के अंदर रहोगे तो सब कुछ चलेगा. वो स्ट्रक्चर के बाहर जाओगे तो थिंग्स विल नॉट वर्क. तो व्हाट आर द प्रॉब्लम्स? वन प्रॉब्लम इज लाइक रीडिजाइनिंग. अगर आपको एक न्यू कॉलम ऐड करना है तो फिर और उसमें ऑलरेडी अपने डेटा पॉपुलेट किया है, कुछ जैसे बैंक का अकाउंट्स है सोचो, तो ऑलरेडी आपको न्यू कॉलम डालना है, तो डिजाइन टाइम पे मॉडिफाई करते समय यू टू मेक श्योर दैट द एग्जिस्टिंग डेटा इज नॉट लॉस्ट. करेक्ट? यस. सो रीडिजाइनिंग, सो इट इज नॉट फ्लेक्सिबल टू चेंज, ऐसा बोल सकते हो. ओके. हाँ, तो अभी NoSQL की तरफ जाते हो तो NoSQL में यू रिमेम्बर वी यूज JSON फाइल. Yes. So that file, the design and the data both are defined in the file itself every single time. You don't have to, you can change the design when the next set of data is coming. So it is very flexible to change. So are you getting that advantage of NoSQL? Yes. Yeah. Yes.
The second advantage, so SQL now, now SQL may have a limit on how much it can grow. Okay, so let's say you created a SQL database. You can see the diagram, right? Yes, sir. So SQL will always have a limit on how much it can grow. So it can say I can grow up to 1 terabyte or 1 GB, something like that, or not 10 GB or 100 GB. Let's say what is 1 terabyte, or the modern databases, let's say it is 1 terabyte for some reason. They are more powerful. So they cannot, you cannot, you're not growing vertically. मतलब आप ऐसा कॉलम्स ऐड करते जाते हो, ऐसा साइडवेज ऐसा नहीं ग्रो हो रहे हो ना, मतलब आप वर्टिकली ग्रो हो रहे हो, मतलब सेम टेबल, same number of columns, only the rows in every table can be increased. So this kind of growth is called vertical scaling. Vertical मतलब सीधा, जैसे खड़े होते हैं ना वर्टिकल, तो वर्टिकल स्केलिंग वो वर्टिकली ग्रो हो सकता है, जैसे बिल्डिंग ग्रो होता है ना, एक माले पे दूसरा माला डालता है, तो SQL database is more suitable for vertical scaling. तो इसमें क्या होता है, देन यू आर वेरी डिपेंडेंट ऑन दैट मशीन. तो ये एक ही मशीन पे ग्रो हो सकता है ना, फिर जो भी मशीन पे आपने इंस्टॉल किया है, माई SQL को इंस्टॉल किया है तो 1 TB का 2 TB भी करना है तो वही मशीन पे होगा. लेकिन एक मशीन का भी एक लिमिट होगा ना, मशीन मे बी जस्ट एबल टू मे बी अ 4 TB मशीन. So even if you can vertically scale, you are limited by the hard disk space of the machine, which is 4 TB, let's say. So vertical, so that's why now here there's an advantage of NoSQL, which can scale horizontally. You don't have to store your data on one machine, but you can store your data on multiple machines. So let's say I'm having a table A which I am sending the data in JSON format, so that I can store it over here, table 1, data. Then I can take some files and store it on the other machine. Is this possible? You can store different files. If you have multiple files, you can store it on different machines. Is that possible? No sir. अगर आपके पास 3 फाइल्स है तो एक एक फाइल आप अलग अलग मशीन पे डाल सकते हो. आप सेव कर सकते हो विंडोज एक्सप्लोरर में. यस फाइल सेव कर सकते हैं. तो अल्टीमेटली वो एक फाइल ही है ना, मतलब ऐसा कुछ एक लो लेवल पे तो एक फाइल ही है. अभी आप फाइल को एक बड़ा फाइल को आप 4 फाइल में स्प्रेड आउट करते हो और फिर वो 4 फाइल आप किधर भी स्टोर कर सकते हो ना, कौन सा भी मशीन पे स्टोर कर सकते हो. अगर वो मशीन नेटवर्क में है तो सोचो ये नेटवर्क में है. आप लोग अभी ऑफिस में नेटवर्क में काम करते हो, मतलब आपका मशीन की आइसोलेटेड डेस्कटॉप पे काम करते हो? नहीं, नेटवर्क. तो आपको एक दूसरे का डायरेक्टरीज दिखता है ना, शेयर डायरेक्टरीज. यस आप अगर शेयर डायरेक्टरीज है तो आप उनके डायरेक्टरी में अपना डेटा सेव कर सकते हो. आपके मशीन में अगर कोई शेयर डायरेक्टरी है तो कोई और डायरेक्टरी में सेव कर सकता है, बराबर है ना. तो आप जब तक नेटवर्क में हो, यू कैन स्प्रेड योर डेटा अक्रॉस मशीन्स. तो इसमें क्या हो रहा है, आपका ये जो स्केलिंग है, अगर एक मशीन का 1 TB सोच ले, इधर 4 TB पॉसिबल है, तो 4 TB को 12 TB बनाने में आपको सिर्फ मशीन ऐड करना पड़ेगा ना. इधर और एक TB मिलेगा आपको 4 TB, और एक 4 TB मिलेगा, इधर शायद 8 TB मिलेगा. तो आपको इसका एक स्केलिंग, इस टाइप के स्केलिंग को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल स्केलिंग. ओके. तो हॉरिजॉन्टल स्केलिंग मतलब लेफ्ट एंड राइट स्केल होता है, लेफ्ट एंड राइट. अगर लेफ्ट हैंड साइड पे मेरा कोई मशीन है तो उस पर भी मैं थोड़ा डेटा डाल सकता हूँ, राइट हैंड साइड पे कोई मशीन है तो उस पर भी डेटा डाल सकता हूँ. जब तक मुझे वो मशीन एक्सेसिबल है, मैं वो उस पर मेरा डेटा
थोड़ा डेटा लेके उधर डाल सकता हूँ. सो नो सिक्वल is not only flexible to change but it is also मतलब आप ना ही डिज़ाइन मॉडिफाई कर सकते हो एवरी फाइल में विद द डेटा, बट यू कैन ऑल्सो हॉरिजॉन्टली स्केल. तो इसमें क्या होता है आपको ये पार्टीशनिंग शेडिंग मैंने लास्ट टाइम एक्सप्लेन किया था ना. Yes. तो sharding is basically your machines only. Shards are like your machines. तो every machine will have a shard key. ऐसे मतलब ये मशीन को रिकग्नाइज करेगा. जैसे प्राइमरी की होता है टेबल का, मशीन का भी एक शार्ट की होता है. तो इसका शार्ट की इज इक्वल टू 1 और इसका शार्ट की इज इक्वल टू 2. और इसका शार्ट की इज इक्वल टू 3. तो जब भी आप डेटा सेव करते हो तो आपको शार्ट की बताना पड़ता है कि आप किस शार्ट पे अपना डेटा डाल रहे हो. तो ऐसे हो सकता है कि आप 2 शार्ट्स यूज़ कर रहे हो क्योंकि आपका डेटा बहुत बड़ा है. तो कभी भी आप डिज़ाइन करते हो टेबल्स, ये सॉरी व्हेन यू आर ऑपरेटिंग योर डेटाबेस स्पेशली इन द क्लाउड, you if you are going to use big data, you have to tell them how many shards are you going to use. When you with this kind of question means how many machines you are going to use, because every machine is going to come with their own storage space like your hard disk. It is going to give you the processor and it is going to give you the memory. तो इसमें पैरेलल कंप्यूटिंग भी हो जाता है कि एक ही टाइम पे आप 3 जगह पे काम कर सकते हो साइमल्टेनियसली. तो इसमें पैरेलल कंप्यूटिंग पॉसिबल है. तो शार्ट्स को मैंने बोला था कि वो कॉलम डिवीजन करता है, बराबर है लास्ट टाइम. एक कॉलम एक कॉलम एक शार्ट में डालो. लेकिन ऐसे भी हो सकता है कि आप 2 अलग आपका कॉलम पार्टीशन है. तो अभी कॉलम पार्टीशन का मतलब है, मैं बोल रहा हूँ कि पार्टीशन यूजिंग कॉलम्स. अगर रो पार्टीशन बोल रहा हूँ तो आप रो को डिवाइड कर रहे हो, मतलब 10 रो इधर डालते हो, 20 रो उधर डालते हो. लेकिन कॉलम पार्टीशन मतलब पूरा का पूरा कॉलम आप एक जगह पे डालते हो. तो उसका एडवांटेज क्या होता है, अगर कोई सोच लो वीडियो फाइल है तो वीडियो फाइल आप उससे और रीड तो नहीं कर सकते अगर डेटाबेस में, तो उसको एक अलग सा शार्ट में ही डाल दो क्योंकि वीडियो फाइल बहुत बड़ा होता है, उसको सर्चिंग करना, प्रोसेसिंग करना बहुत टाइम लगता है. तो उसको अलग तरह से ट्रीट करो आप. तो उसको ट्रीटमेंट अलग करने के लिए आपको कॉलम पार्टीशन यूज़ करना चाहिए. तो ये ज़्यादातर कॉलम पार्टीशन यू हैव टू you partition columns which requires heavy processing. इसमें कुछ डाउट है अभी तक मैंने जितना बोला है? नहीं सर. श्योर? डिफिकल्ट तो नहीं कर रहे ना, मतलब मैं जो बोल रहा हूँ थोड़ा एडवांस्ड है ये. वर्टिकल स्केलिंग और हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में फ़र्क मुझे बताओ. मतलब सर सिक्वल जो है वो वर्टिकल स्केलिंग के लिए यूज करते हैं और नो सिक्वल जो है वो हॉरिजॉन्टल स्केलिंग के लिए यूज करते हैं. नहीं, ऐसे हो सकता है सिक्वल भी हॉरिजॉन्टल स्केलिंग कर पाए, मुझे पता नहीं है. बट जितना मतलब जो इनिशियल जब डेटाबेस आए थे ना, जब स्टार्टिंग में आया था तो नो सिक्वल एक रीज़न की वजह से आया था. बिग डेटा संभालने के लिए आया था. बिग डेटा मतलब आप 4 टेराबाइट 5 टेराबाइट एक मशीन पे वो स्टोर भी नहीं होता है और आपको सर्चिंग भी करना पड़ता है ना. वो डेटा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम क्वेरी आप 4 टेराबाइट पे करोगे तो सर्च कितना जल्दी होएगा, बहुत टाइम लगेगा ना. तो इट इज़ लाइक डिवाइड एंड कॉन्कर, मतलब आप अलग अलग मशीन पे करो, पैरेलली करो, सर्च करो. तो ये सब टेक्निक्स आगे बाद में. तो जो बिग डेटा की वजह से नो सिक्वल आया है, ऐसा सोचो आप, जिसमें हॉरिजॉन्टल स्केलिंग पॉसिबल था, शार्टिंग पॉसिबल था, पार्टीशनिंग पॉसिबल था, बहुत सारी चीज. फिर बाद में जाके जब सिक्वल पीछे रह गया तो पीछे सिक्वल भी अपना डेटाबेस, जैसे सिक्वल सर्वर ने भी अपना एक पार्टीशन अलाउ किया. पहले पार्टीशन था नहीं सिक्वल सर्वर में या माई सिक्वल में या कोई भी डेटाबेस में, ऐसे पार्टीशंस नहीं थे.
तो एक वो टेबल था, रोज था, कॉलम्स था, जो भी आपने कॉलेज में पढ़ा था। लेकिन एक टाइम के बाद क्या हो गया कि थोड़े केसेस में हमें सिक्वल के पास जाना पड़ता है, क्योंकि वो बहुत स्ट्रक्चर्ड है। और एक कभी कभी हमें नो सिक्वल की तरफ जाना पड़ता है, वो क्योंकि वो बहुत फ्लेक्सिबल है। तो आपको स्ट्रक्चर चाहिए कि फ्लेक्सिबल चाहिए, ये डिसाइड करना पड़ता है। तो ऐसे हो सकता है आप दोनों यूज़ कर रहे हो डेटाबेसेस। कभी ये एक काम के लिए आप सिक्वल यूज़ कर रहे हो, दूसरे काम के लिए आप ये यूज़ कर रहे हो नो सिक्वल, ठीक है। तो जब डेटा बहुत ज़ोरों से फ्लो होता है ना, जैसे अभी फेसबुक पे बहुत लोग अपलोड करते हैं फाइल्स, तो बहुत मिलियंस ऑफ फाइल्स अपलोड होता है एक ही टाइम पे। तो एक मशीन उसको संभाल नहीं पाता है, एक डेटाबेस को संभाल नहीं पाता है। सो यू नीड, क्योंकि वो डेटा अभी जो अपलोड करता है वो किस मतलब कभी कभी डेटा थोड़ा वेरिएशन भी होता है, मतलब कुछ अलग हो जाता है। तो वो सब चीज़ अकोमोडेट करने के लिए नो सिक्वल आया है। तो यू आर ओके, लाइक सिक्वल सपोर्ट्स वर्टिकल स्केलिंग, नो सिक्वल सपोर्ट्स हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। SQL is more structured, that is an advantage, but it is less flexible to change, ऐसा बोल सकते हो। Change. And NoSQL is flexible to change, and it supports very naturally. It supports partitioning and sharding. Sharding. ठीक है। तो any so what is horizontal scaling? Explain करो मुझे। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में सर हम लोग मतलब फाइल्स जो है वो मतलब डिफरेंट मशीन पे स्टोर कर सकते हैं, डिफरेंट मशीन्स पे स्प्रेड आउट कर सकते हैं, थोड़ा डेटा इधर थोड़ा डेटा उधर। यस, स्प्रेड आउट कर। हाँ, और कॉलम पार्टीशन, व्हाट इज व्हाई विल यू गो फॉर अ कॉलम पार्टीशन, व्हेन विल यू गो फॉर अ कॉलम पार्टीशन? अब कभी उसको कॉलम पार्टीशन क्रिएट करोगे? कॉलम पार्टीशन मतलब कॉलम मतलब एक कॉलम को पूरा लेके मतलब वर्टिकली, हाँ, वो सेपरेट करके किधर और डालते हो ना, डिवाइड कर रहे हो। डेटाबेस को ही एक टेबल में 4 कॉलम्स हैं, और एक कॉलम को पूरा निकाल के वो पूरा डेटा आपने किधर और डाल दिया है। तो वो कभी करोगे और क्यों करोगे? पार्टीशन इधर आंसर लिखा है मैंने नीचे ना, requires heavy processing. Partition columns which require heavy processing. तो मतलब आप वो कॉलम पार्टीशन करोगे जो जिसमें हैवी प्रोसेसिंग हो। ओके, हैवी प्रोसेसिंग का एग्जांपल क्या होगा? तो हैवी प्रोसेसिंग, अभी आपका डेटा क्या है ना, टेक्स्ट फॉर्मेट में हो सकता है, नंबर फॉर्मेट में हो सकता है, या बाइनरी फॉर्मेट में हो सकता है, बराबर है ना? स्टोर ऑल काइंड्स ऑफ डेटा। अभी क्या है, टेक्स्ट और नंबर में थोड़ा हमें मास्टरी हो गया है, समझा? तो मतलब ये डेटा पे आप सर्च कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो, इसका पूरा हमने मास्टरी कर दिया, सिक्वल ने इसको मास्टर कर दिया है, सोचो। क्योंकि आपके पास सिलेक्ट क्वेरी है, नो जो भी क्वेरीज यूज़ करके जॉइंस है, ये है वो है, तो टेक्स्ट और नंबर को आप जल्दी से सर्च कर सकते हो। लेकिन बाइनरी डेटा क्या बाइनरी जो वीडियो फाइल, ये भी तो आप यू कैन स्टोर इट एज अ ब्लॉब डेटा टाइप ना, तो ब्लॉक डेटा टाइप इज बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट। तो अगर आप वीडियो स्टोर करते हो, सोच लो पीडीएफ स्टोर करते हो, so this file can you search inside the pdf file what is there, what is not there using SQL? no. हाँ, तो इसके लिए अभी कोई एडवांटेज है क्या ये कॉलम को वही टेबल में रखने का? मुझे वो खाली फुकट वो डेटा बढ़ेगा ना। अगर मैं कोई SQL आपका एक कॉलम है, सोचो इसमें पूरा वीडियो फाइल्स है, इधर एक कॉलम है आपका, इधर ये पूरा वीडियोस है। ये पहला तो डेटाबेस का साइज का प्रॉब्लम है ना, उसका लिमिट का प्रॉब्लम है। वो ज़्यादा आप जितना बढ़ा दोगे तो बाकी डेटा को मतलब जगह नहीं मिलेगा।
So it is better that you keep this data restricted for text and numbers, for text and numbers and dates and everything. It is better for that purpose. But if you are doing binary processing और टेक्स्ट में भी बाइनरी प्रोसेसिंग, मुझे अभी याद नहीं है, ऐसा कुछ स्ट्राइक नहीं हो रहा कि कुछ इम्पोर्टेंट होगा. लेकिन अगर टेक्स्ट ज़्यादा होगा, मतलब बहुत सारे रोज है, 1 मिलियन रोज है, तो सिलेक्ट क्वेरी स्लो हो जाएगा आपका. तो अगर डेटा ज़्यादा होगा तो उसको पार्टीशन करना बहुत ज़रूरी है. और अगर कॉलम बाइनरी है और आपका प्रोसेसिंग बाइनरी है, जैसे वीडियो होगा, पीडीएफ फाइल, तो ये फाइल आप रीड करके, देयर आर टूल्स विच कैन रीड योर पीडीएफ फाइल एंड टेल यू व्हाट इज द टेक्स्ट मैटर इन दैट, or there is programs which can read a video and tell what is which whether there are human beings in the image or in the video, or which actor is there, or who is there in the video, or what are they saying in the video. All that processing can be done, but there is no point of keeping them in a SQL database. You can partition this such kind of columns and put it in one machine, and then let the processing be done over there. So you can take this entire column and maybe थोड़ा इधर डाल दो वो डेटा, वो कॉलम को भी नहीं पार्टीशन कर रहे हो आप, उसके रोज को भी पार्टीशन, मतलब आप यू आर नॉट ओनली शेडिंग बट यू आर ऑल्सो पार्टीशनिंग इट बिटवीन मल्टीपल मशीन. सो पैरेलली 3 वीडियो प्रोसेस होंगे अगर 3 मशीन्स पे डाले, तो इससे प्रोसेसिंग भी फास्ट होएगा. और अपने डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटेजी यूज़ किया है ताकि ये प्रोसेसिंग जल्दी करे. क्योंकि अगर आप सोचो ना, कितने लोग फाइल्स अपलोड करते हैं इंस्टाग्राम पे और फेसबुक, ये जो भी मेटा है, फिर कौन सा भी आप सोशल वेबसाइट लोगे, बहुत सारा डेटा अपलोड हो रहा है आजकल. सब लोग ऑलमोस्ट लाइक 50% ऑफ द वर्ल्ड इज ऑन इंटरनेट. So there's a lot of data that is coming in, lot of self-driving cars are there. Self-driving cars, ये self-driving cars अपने आप कैसे चलता है, ये अपने आप, ये इंटरनेट से कनेक्टेड है एक्चुअली. तो इनका डेटा कॉन्स्टेंटली प्रोसेस होता है कि दूसरा गाड़ी कितना दूर पे है, मेरे अभी नेक्स्ट कौन सा लेना है. गूगल मैप है आपके पास, तो इसमें बहुत सारा डेटा प्रोसेसिंग होता है. एक लोकेशन ट्रैकिंग आप कर रहे हो कि आप किधर हो, ये गूगल मैप में, तो कांस्टेंट डेटा प्रोसेसिंग होता है. तो अगर आपके पास डेटा इतना ह्यूज है, बिग डेटा है आपके पास, तो यू हैव टू गो विद you have to decide between what to use SQL for and what to use NoSQL for. So are you understanding now when to use column partitioning? सर एक बार एक्सप्लेन कीजिए. कॉलम समझ में आता ना आपको, एक टेबल में कॉलम. हाँ सर. हाँ, वो कॉलम आप सोचो उसमें वो ब्लॉब टाइप का है. ब्लॉब मतलब बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट, ये ब्लॉब डेटा टाइप. ये इसका ये क्वेश्चन भी आ सकता है, व्हाट इज अ ब्लॉब. सो बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट, बेसिकली बाइनरी डेटा होता है, ऑब्जेक्ट है वो, जैसे फाइल होगा, कोई मोस्टली एक फाइल ही होगा वो, वैसे एक पीडीएफ फाइल होगा, वीडियो फाइल होगा, कुछ तो होगा, और उससे आप डेटाबेस के अंदर स्टोर करते हो. सो यू कैन स्टोर अ ब्लॉब ऑब्जेक्ट इनसाइड योर डेटाबेस. तो ये बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट्स को अगर आप प्रोसेसिंग करते हो, मतलब आपको वीडियो एडिटिंग करना है, सोचो वीडियो में एड्स डालना है, वीडियो में कैप्शंस डालना है, तो ये सब प्रोसेसिंग होता था ना कि ये वीडियो में क्या बोल रहे हैं, इसमें कौन कौन एक्टर्स है, पूरा उसको ट्रांसलेट करना है, तो इसको वीडियो प्रोसेसिंग बोल सकते हो. तो अगर आप वीडियो प्रोसेसिंग कर रहे हो तो आप क्या क्वेरी तो नहीं फायर कर सकते ना, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस, सिलेक्ट ऑल द वीडियोस फ्रॉम दिस एंड स्टार्ट टेकिंग वन वीडियो. ये प्रोग्राम तो नहीं लिख सकते, इसका प्रोसेसिंग अलग होना चाहिए, और ये बहुत बड़ा प्रोसेसिंग है ना वीडियो प्रोसेसिंग. तो व्हाट इज़ अ बेटर ऑप्शन इज, यू फर्स्ट ऑफ ऑल यू डोंट कीप इट इन द सेम प्लेस, यू put it in 3, you partition the column and separate out that column. मतलब ये चीज़ को आप अलग कर देते हो डेटाबेस से, ये चीज़ को अलग करके, तो आप इसको 3 मशीन्स में बांट देते हो.
सो कॉलम पार्टीशनिंग आपने क्या किया है, कॉलम पार्टीशनिंग किया, और क्यों किया है, क्योंकि इसमें हैवी प्रोसेसिंग है और क्योंकि ये बाइनरी है। yes. अगर टेक्स्ट होता तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल 1 चल जाता था, लेकिन सिलेक्ट स्टार वीडियो फाइल को सिलेक्ट करके कुछ फायदा नहीं है आपको, आप उसको रीड नहीं कर सकते। इट इज नॉइदर टेक्स्ट, यू नो, उसको आपको प्रोसेसिंग करके ही पता चलेगा कि उसमें अंदर क्या है। सो कॉलम पार्टीशनिंग इज डन। what first of all, what is column partitioning? Column partitioning is partitioning of a column of a table. तो ऐसा नहीं है कि क्योंकि आपने ये सेपरेट किया तो ये टेबल से जुड़ा नहीं है, नहीं, ये टेबल का लिंक इधर है इसके पास। ऐसे ये डेटाबेस को पता है कि आपने ये अभी इसको पार्टीशन किया है, और इसका एक पॉइंटर जो भी है किधर भी वो हार्ड डिस्क पे है उसको पता है ये किधर है करके। फिजिकल टेबल को अपना लॉजिकल पार्टीशन, एक डेटाबेस को सब पार्टीशन किधर है पता रहता है। तो अगर आप सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल करोगे तो वो बोलेगा कि इसमें वीडियो भी है, लेकिन वो वीडियो कॉलम किधर स्टोर किया है वो अलग बात है फिर स्टोरेज में। तो कॉलम पार्टीशनिंग बेसिकली हैवी प्रोसेसिंग अगर होगा, जैसे वीडियो प्रोसेसिंग, टेक्स्ट फाइल प्रोसेसिंग होता है, तो अगर आपने उसको डेटाबेस में स्टोर किया है, सिक्वल डेटाबेस में स्टोर किया है, तो उसको कॉलम पार्टीशन कर दो आप, ताकि वो मतलब उधर साथ में रख के कुछ फायदा नहीं है, आप सेपरेट रख के आपको ज़्यादा फायदा रहेगा पार्टीशन करके। तो अभी आपको थोड़ा आइडिया पता चल रहा है व्हेन शुड यू डू कॉलम पार्टीशन। तो थोड़ा एक्सप्लेन करोगे कॉलम पार्टीशनिंग? सर कॉलम पार्टीशन मतलब पार्टीशन ऑफ अ कॉलम, एंड जो भी हैवी प्रोसेसिंग है, मतलब जैसे कि कोई वीडियो प्रोसेस करना है मतलब, तो हम लोग कॉलम पार्टीशन है। और पार्टीशन करके शार्टिंग कैसे यूज करोगे इसमें? अगर आपके पास एक कॉलम है, सोचो, ठीक है, हाँ, अभी यू आर गेटिंग 10 लाख वीडियोस, एक वीडियो आपका 30 MB 40 MB का होगा। सो यू लुकिंग एट अ वेरी बिग डेटा। अभी आपके पास इतना डेटा है तो उसको प्रोसेसिंग कैसे करोगे आप? शार्डिंग का टेक्निक कैसे यूज करते हैं? सर वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। वेरी गुड। सो यू विल डिस्ट्रीब्यूट दिस कॉलम यूजिंग शार्डिंग टेक्निक। यस। ये टर्म्स जो है ना, जो आपको तकलीफ हो रहा है अभी स्टार्टिंग में, आप इसको नोट डाउन करो और थोड़ा वीडियोस देखो। हाँ सर, मैंने लिख लिया है, ताकि आप अपना लैंग्वेज में यूज करो उसे। सो यू कैन से आई विल डू अ कॉलम पार्टीशनिंग एंड आई विल शार्ड इट अक्रॉस द मशीन। ओके। तो आगे वाले को समझेगा। अभी क्या है ना, आप एक एडवांस लेवल पे जा रहे हो ना, तो ये लैंग्वेज टेक्निकल टर्म्स यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे शार्ड, पार्टीशन, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, वर्टिकल स्केलिंग, अवेलेबिलिटी। आज अभी ये लेक्चर में मैंने 3-4 शब्द नया थोड़ा इंट्रोड्यूस किया है। पता नहीं लास्ट टाइम मैंने वर्टिकल स्केलिंग, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग पूछा है कि नहीं, बट ये सब टर्म आपके आंसर में रहना चाहिए कभी भी, क्योंकि आप एक सिंपल सिक्वल डेटाबेस प्रोग्रामर का इंटरव्यू नहीं दे रहे हो ना, आप एक डेटा एनालिटिक्स, बिग डेटा का इंटरव्यू दे रहे हो, तो ये सब टर्म्स आना चाहिए आपको। ये बेसिक्स है। व्हाट इज अच्छा, मुझे शार्ड की क्या है थोड़ा उसको वो बताओ। व्हाट इज अ शार्ड की? ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ शार्ड की एंड व्हाट इज पार्टीशन की एंड शार्ड की? पार्टीशन का भी की होता है और शार्ड का भी की होता है। व्हाट इज द डिफरेंस या व्हाट इट इज, कुछ भी बताओ। मतलब सर उसका कोई ओके, मुझे बोलो प्राइमरी की और फॉरेन की में क्या है? प्राइमरी सर मतलब यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग
यूज करते हैं। What it uniquely identifies? It uniquely identifies a मतलब सर अगर हम लोगों ने कोई मान लो आईडीज एम्प्लॉय आईडीज का अगर प्राइमरी की अप्लाई किया है तो एम्प्लॉय कैन नॉट एंटर सेम आईडी अगेन। yes, but it identifies a row. You can say identifies a row in a table. Primary key. एक टेबल में यस दो रो का एक ही की हो सकता है। यस सर। प्राइमरी की दो रो का एक ही हो सकता है। यूनिक होता है ना प्राइमरी की कभी भी। दो रो का नहीं कॉलम का हो सकता है। हाँ कॉलम का नहीं बात कर रहे। हाँ। सो प्राइमरी की रो का प्राइमरी की इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई अ रो in the current table, correct na? Yes. Foreign key, what is foreign key identify? Means वो क्या ढूंढ के निकालता है आपको? So this is the row in same table. First वाला। इसमें कुछ रिलेशन हमें फाइंड आउट करना है with primary key। हाँ, then we can use foreign key. So basically foreign key is used to identify a row in another table. Yes. Okay. So same way, what is partition key used to identify? अभी आप एक टेबल को 4 भागों में बांट देते हो। आपको कैसे पता चलेगा कि पहला भाग कौन सा है, दूसरा भाग कौन सा है, तीसरा भाग कौन सा है? तो उसके लिए आप पार्टीशन की डिफाइन करते हो। ठीक है, तो जब आप पार्टीशन की डिफाइन करते हो, इट आइडेंटिफाइज अ पार्टीशन। तो एक पार्टीशन में आपने ए और बी कॉलम डाला रहेगा, हो सकता है। दूसरा पार्टीशन, तो ये पार्टीशन 1 हो गया आपका, की 1। पार्टीशन 2 का की में सी और डी डाला है आपने, ये भी हो सकता है। हर एक पार्टीशन इज आइडेंटिफाइड यूजिंग अ पार्टीशन की। ओके। मतलब जैसे आपको रो ढूंढ के निकालना है तो आपको प्राइमरी की जरूरत पड़ती है, आपको पार्टीशन की ढूंढ के निकालना है तो आपको पार्टीशन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो पार्टीशन की कभी कभी हम पार्टीशन की कॉलम वाइज भी पार्टीशन कर सकते हैं। इन द सेंस मैं ये बोल सकता हूँ कि सिटी वाइज पार्टीशन करो। मतलब एक कॉलम है सिटी, सोचो सिटी एक कॉलम है और इसको सिटी वाइज आप पार्टीशन करो। मतलब जो भी मुंबई सिटी का है उसको एक पार्टीशन में डालो, ऐसे बोल रहा हूँ मैं। So your partition key in this case becomes a column, but that column is used to separate out the data. तो मुंबई का डेटा अलग हो गया, दिल्ली का डेटा अलग हो गया, है ना? तो सोचो फिर और कोई एरिया है तो उसका सोचो राजस्थान का एरिया है तो वो अलग हो गया। तो यह पार्टीशनिंग यूजिंग अ पर्टिकुलर column, that also is possible. So do you understand what is a partition key? Yes sir. तो पार्टीशन की अगर आपके पास रहेगा तो आपको पता रहेगा कि आपको मुंबई का डेटा, अगर पार्टीशन की बोल रहा है, पार्टीशन की मुंबई है, select staff from table where partition key is equal to मुंबई, तो आपको इमीडिएटली वो पार्टीशन की पे जंप करके वो डेटा सर्च कर सकते हो। आपको सब डेटा सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी ने बोला दिल्ली तो वो सेकेंड इसमें आ जाएगा, तो दिल्ली का जो पार्टीशन है उधर जाके सर्च करेगा। आपको पूरा डेटाबेस आपको सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। इधर जयपुर होगा तो आप जयपुर का डेटा सर्च करोगे based on the partition key. The partition key is done by city type. तो ये बात आपको समझ में आई? Partition key. Shading is mostly connected to distribution on a different machines rather than distribution within that
rather than a distributed database. You know, it is about machines. तो ऐसे हो सकता है दो पार्टीशन एक शार्ड में हो और दूसरा पार्टीशन सेकेंड मशीन पे हो, और ये भी हो सकता है कि इसका दो कॉपी हो, मुंबई का डेटा इधर भी है और शार्ड 1 पे भी है और शार्ड 3 में भी है एक बैकअप कॉपी, ये भी हो सकता है। तो वर्टिकल स्केलिंग का फायदा ना ही स्केलिंग है बट अवेलेबिलिटी भी है कि एक पे डेटा नहीं मिला तो दूसरा मिल जाएगा मुझे, एक बैकअप रिप्लेसमेंट कॉपी। So shard key, what does it identify? Shard key will identify the shard or the machine. Machine where partition is stored. तो ये कॉन्सेप्ट सब में अभी जो भी समझे, कुछ डाउट है? नहीं सर। Okay, so tell me what is a primary key, foreign key, partition key and shard key? प्राइमरी की तो सर हम मतलब डेटा को मतलब पर्टिकुलर यूनिक डेटा को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करते हैं, यूनिक रो को। और फॉरेन की मतलब हमें अगर रो में पर्टिकुलर डेटा फाइंड आउट करना है दो टेबल में, फॉरेन की किसी और टेबल में यूनिक रो को आइडेंटिफाई करना है तो उसके लिए यूज होता है फॉरेन की। इट इज आइडेंटिफाइज अ रो इन अनदर टेबल। डेफिनेशन दिख रहा है ना आपको स्क्रीन पे? हाँ सर। फॉरेन की इज अ की which is used to identify a row in another table, a foreign table. Another table. Yes. And partition key is used to identify every partition. Very good. Okay. And shard key is used to identify shard where partition is stored. ये लास्ट डेफिनेशन आपको समझ में है शार्ड की? यस सर। अगर आपके नेटवर्क में 3 मशीन्स है और आपने डेटाबेस को डिस्ट्रीब्यूट किया है तो आपको पता तो रहना चाहिए ना कौन सा डेटा आपने किधर डाला है, और इसका एक कॉपी दो तीन मशीन्स पे रखा है, एक डुप्लीकेट किया है कॉपी आपने, तो वो भी तो पता होना चाहिए ना आपको मशीन 1 पे है कि मशीन 2 पे कि मशीन 3 पे है, बराबर है ना? yes. तो अभी आपको शार्ड की समझ में आ गया ना? Yes. Okay. So NoSQL, you know, when we use NoSQL, there are 4 types. So this is what can come in the interview also. So document, key value, column, and graph. And unstructured is basically your, you know, as I told you, most of it is your binary data, but it is also data lake is also an example of your unstructured database. So a data lake is something where all types of data is there. Even structured data is stored there, semi-structured is stored there, as well as unstructured database is also stored there. NoSQL database, only NoSQL data types are stored. NoSQL databases are stored. SQL databases are stored, but in unstructured, it is very specific to binary. But if you talk about AWS data lake, or don't talk about AWS, just talk about data lake. Data lake is a repository, we can say, which stores all types of data.
इट स्टोर SQL डेटा। जो SQL डेटा इज अल्टीमेटली अ फाइल ना, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको समझाया था कि एक अल्टीमेटली दिस इज सम फाइल ऑन द कंप्यूटर, सो इट कैन बी स्टोर्ड इनसाइड योर any folder or any directory. So AWS में जो folder type का operations करते हैं उसे वो उसका एक सर्विस है called simple storage service. Okay. S3 सर्विस के बारे में कभी सुना है आपने AWS में? नहीं सर। So S3 stands for Simple Storage सर्विस। तो ये विंडोज़ एक्सप्लोरर आपको समझ में आता है? विंडोज़ एक्सप्लोरर क्या है? हाँ सर। तो विंडोज़ एक्सप्लोरर फाइल्स कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, मतलब कैसे वो विंडोज़ सब फाइल्स को ऑर्गेनाइज करता है, मुझे बोलो। अगर आप विंडोज़ एक्सप्लोरर में जाएंगे तो फाइल्स कैसे ऑर्गेनाइज होता है? फाइल्स मतलब वो डिफरेंट डायरेक्टरी में स्टोर है। तो बेसिकली एक डायरेक्टरी होता है और डायरेक्टरी के अंदर फाइल होता है, ये इसका बेसिक फॉर्मेट है ना। इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो है नहीं, तो ये एक फाइल सिस्टम बोल सकते हो आप। विंडोज एक्सप्लोरर इज एन एग्जांपल ऑफ अ फाइल सिस्टम, ओके। एंड फाइल सिस्टम इज ऑलवेज हैविंग, जैसे SQL में टेबल्स होता है, रोज होता है, कॉलम्स होता है, फाइल सिस्टम में डायरेक्टरीज होता है और फाइल्स होता है। तो अगर आप कोई भी बोलते हो कि लिनक्स का भी एक फाइल सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम आप यू बोलते हो, कौन सा भी मशीन यूज़ करते हो, लिनक्स यूज़ करते हो या एप्पल यूज़ करते हो, एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम iOS है ना शायद, वो उसका हाँ एप्पल का iOS नहीं, उसका डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम iOS ही है, मुझे याद नहीं आ रहा है। बट एनीवे iOS is also a operating system. Mostly it is a operating system for iPhones, and that also will have a file system. Every phone, every desktop, every laptop will have some file system, and whenever we talk about file systems we are talking about directories and files. So the concept is the same. Any doubt on this? No sir. Okay, so in the same way AWS cloud has a similar type of data structure. It is not exactly a file system, it is more than a file system. It is called simple storage service, where everything is organized in terms of buckets and objects. Concept same ही है, but every directory is treated as a bucket. Not every directory, but there is ये bucket के अंदर आपका directories हो सकता है और वो folders हो सकता है, folders के अंदर वो objects हो सकता है। तो एक bucket के अंदर आपके multiple folders आप बना सकते हो, जैसे ये directory system है। और वो जो object है वो एक फाइल ही होगा वो, और ये ऑब्जेक्ट आप इंटरनेट पे एक्सेस कर सकते हो, मतलब उसका एक लिंक बनेगा, HTTP लिंक बनेगा हर एक ऑब्जेक्ट का, तो आप एक्सेस कर सकते हो उसे। तो ये इसका बड़ा एडवांटेज है। तो अभी आप कुछ भी अगर बकेट में डालते हो तो किसी और प्रोग्राम को एक्सेस करना है, वो चाहे किधर भी हो, एक HTTP लिंक से आप उसको एक्सेस कर सकते हो। जैसे आपने गूगल ड्राइव में अपना कोई फाइल डाला, अभी वो फाइल आपको शेयर करना है तो आप उसका एक लिंक बनता है ना, HTTP लिंक बनता है, बराबर है। तो गूगल ड्राइव यूज़ किया है आपने? तो मैं जो बोल रहा हूँ आपको। हाँ सर। हाँ, अभी मैंने जो भी समझाया इसमें कोई आपको डिफिकल्टी हुई अभी तक? नहीं सर। तो S3 is all about bucket and objects. File system is all about directories and files. तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसमें आप कोई भी फाइल डाल सकते हो। इसमें जैसे स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस का फाइल डाल सकते हो, इसमें आप अनस्ट्रक्चर्ड डेटाबेस का फाइल भी डाल सकते हो, इसमें आप सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस का फाइल्स भी डाल सकते हो। और मतलब ये S3 क्योंकि क्लाउड में है तो उसको आप अलग अलग लोकेशन पे भी स्प्रेड आउट कर सकते हो, तो बहुत एडवांटेजेस है। और फाइल सिस्टम डेफिनेटली मोस्टली OS से रिलेटेड है, लेकिन क्लाउड पे भी आप इसको एक्सपैंड एक स्प्रेड आउट कर सकते हो इफ़ यू यूज़ इलास्टिक फाइल सिस्टम। तो
तो ये पहला टाइम आप अभी जितना भी लेक्चर्स हुए हैं, ये पहला टाइम आप AWS सर्विसेज के बारे में जान रहे हो। तो ये पहले सर्विसेज, तो इसको EFS सर्विस बोलते हैं हम, इलास्टिक फाइल सिस्टम। इसको इलास्टिक इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसको आप हॉरिजॉन्टली स्केल कर सकते हो, मतलब पीछे वो ऑटोमेटिकली स्केल हो जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा। स्केल अवेलेबल मतलब एक डुप्लीकेट कॉपी रहेगा, अगर एक कॉपी बंद हो जाएगा तो दूसरा कॉपी ऑटोमेटिकली मिल जाएगा आपको। तो AWS में संभाल लेगा ये सब इश्यूज। तो स्केल भी कर सकते हो, अवेलेबल भी है इसका। और सेम चीज़ सिंपल स्टोरेज सर्विसेज का है, लेकिन इलास्टिक फाइल सिस्टम यूजुअली अगर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हो आप, जैसे लिनक्स आपने मशीन क्रिएट किया है और उस पर मतलब एक मशीन यूज़ कर रहे हो और उस पर आपने लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम डाला या विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम डाला, तो यू कैन यूज़ इलास्टिक फाइल सिस्टम ओवर देयर। तो इलास्टिक फाइल सिस्टम कैन बी शेयर्ड अक्रॉस मल्टीपल मशीन्स। ये चीज़ अगर अभी आपके बॉक्स पे जो विंडोज़ एक्सप्लोरर है, अगर आपको वो फाइल किसी और से शेयर करना है तो आपको शेयर फोल्डर करके बनाना पड़ता है ना, वो नेटवर्क पे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। लेकिन इलास्टिक फाइल सिस्टम में आपको सिर्फ एक स्विच की तरह अटैच करना है, आपका वायर को अटैच करना है और फिर उधर से आपको पूरा जो भी वो फाइल सिस्टम में है मिल जाएगा। तो एक कंपनी में अगर बहुत सारे मतलब यूज़र्स है तो सब लोग इलास्टिक फाइल सिस्टम को कनेक्ट करके फाइल्स यूज़ कर सकते हैं। तो ये डेफिनेटली एक एडवांटेज है ना कि आप बहुत इजी हो जाता है। अगर आपके पास ये 3 लोग हैं और तीन लोगों के पास अपना अपना मशीन है, अपना अपना डेटा है, अपना अपना सॉफ्टवेयर है, तो वो पूरा EFS से कनेक्टेड हो सकते हैं क्लाउड में ही वैसे। और बकेट्स मतलब इधर जैसे मैंने बोला कि इट गिव्स यू द HTTP लिंक ऑल्सो। तो इसमें कुछ डाउट है ये सर्विसेज में AWS S3 क्या है, इसका फुल S3 के बारे में बात आपको क्वेश्चन आ सकते हैं कभी भी इंटरव्यू में, बहुत कॉमन क्वेश्चन होगा। व्हाट इज प्लीज़ एक्सप्लेन S3 सर्विस, प्लीज़ एक्सप्लेन इलास्टिक फाइल सिस्टम। इसमें कोई डाउट है? हेलो? नहीं सर। ओके, तो ये AWS पे कभी आपने देखा है कभी पहले? नहीं सर। तो ये अभी दिख रहा है आपको स्क्रीन AWS का? हाँ हाँ। ओके, तो क्योंकि मैं अभी फ्लो में आपको समझा रहा हूँ तो अभी मैं थोड़ा AWS का आपको थोड़ा बता देता हूँ। तो ये AWS में वेबसाइट पे गया हूँ, aws.com लिख दोगे तो वो वेबसाइट पे जाएगा। तो ये क्लाउड का एक्सेस करना है, तो आपको साइन इन टू कंसोल करना है इधर। ओके। तो इसका प्रैक्टिकल्स भी हो सकता है। तो अभी ये इज आस्किंग फॉर माई यूज़र नेम पासवर्ड, सो आई एम लॉगिंग इन एज अ रूट यूज़र। रूट यूज़र एक एडमिन यूज़र की तरह होता है, ठीक है? ओके। तो पासवर्ड दे दिया क्योंकि ये सिक्योर ऑथेंटिकेशन लाइक 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है। ये जो टर्म्स मैं बोल रहा हूँ ना, थोड़ा नोट डाउन करो। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या है, आपको मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन पे क्वेश्चन आ सकता है। ओके। रूट यूज़र क्या है, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या है। क्या ढूंढ रहा हूँ ऑथेंटिकेटर, 1 मिनट। अभी हम धीरे धीरे क्लाउड में भी जा रहे हैं साथ में। यस सर। ओके ना, आपको प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है ना? Yes, नहीं। बहुत सारे टॉपिक्स इधर उधर मिक्स हो रहे हैं, इसलिए मुझे नहीं ठीक। ये क्या वाई है क्या वी है? जी है सर। चला नहीं, 5B532Q है। बाप रे, ये भी नहीं चला।
अरे क्या हो गया? अच्छा पासवर्ड गलत है। कैप्चा गलत है। अभी क्या समझ में नहीं आ रहा क्या ये लोग लिखते हैं। NGFX मिल ही नहीं रहा है कैरेक्टर्स बराबर है। FMBW एप्लीकेशन क्यों फेल हो रहा है? चेंज अच्छा कुछ अलग है क्या? मैं देखता हूँ। अच्छा लॉगिन हो गया है। ओके अभी क्या हो रहा है, मैं उनके एक बिल्डिंग में कनेक्ट किया हूँ और वो बिल्डिंग किधर है? मुंबई में। दिख रहा है आपको? मैं थोड़ा बड़ा कर देता हाँ हूँ। सर इधर मुंबई दिखता है ना आप? तो मैं स्क्रीन हाँ 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 सर अभी मैं इनके मुंबई के मशीन पे इंटरनेट पे कनेक्टेड हूँ। ठीक है, आप कोई भी बिल्डिंग में आप कनेक्ट कर सकते हो। इनके एक एक बिल्डिंग में 50,000 मशीन हो सकते हैं। बहुत सारे मशीन है उधर। तो ये सब अलग अलग बिल्डिंग्स है। यूएस में एक बिल्डिंग है, अफ्रीका में थोड़े बिल्डिंग्स है उनका, हांगकांग में है। तो कौन से भी इसको हम रीजन्स बोलते हैं। तो इधर मैं रीजन एक मुंबई रीजन में मैं कनेक्ट किया हूँ। मतलब मैं मुंबई के रीजन में जो भी उनका बिल्डिंग है उसमें जो भी कंप्यूटर है वो उनके कंप्यूटर पे लॉगिन कर चुका हूँ मैं। तो मैं अपना बिल्डिंग भी चेंज कर सकता हूँ इधर, एक रीजन से दूसरा रीजन और दूसरे जगह मैं ऑपरेट कर सकता हूँ। तो उसमें हम ज़्यादा नहीं जाएंगे। अभी आपको इतना ही समझना है कि AWS का पूरा मशीन्स बहुत सारे रीजन्स में है ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। यस इसमें अभी S3 सर्विस इधर दिख रहा है आपको। अगर ये रिसेंटली विजिटेड बोल रहा है, लेकिन अगर आप इनका सर्विसेज देखोगे तो इनके बहुत सारे सर्विसेज है। एनालिटिक्स के भी सर्विसेज है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे अगर मैं एनालिटिक्स क्लिक करूँ तो एथेना मिलता है। एथेना इज यूज्ड टू डू क्वेरी डेटा इन S3 यूजिंग SQL. Cloud search is used to do managed search service. AWS data exchange is used to do easily exchange data in the cloud. Data pipeline is for orchestration for data driven workflows. ऐसे बहुत सारे उनके सर्विसेज है और थोड़े सर्विसेज हम सीखेंगे भी। AWS lake formation is a lake formation makes it easy to set up a secure data lake. अभी मैं थोड़ा देर पहले मैंने बोला है ना डेटा, व्हाट इज अ डेटा लेक? यस यस डेटा लेक इज अ प्लेस टू स्टोर ऑल टाइप्स ऑफ डेटा, स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड। यस ये आपको डेफिनेशन में आ सकता है। एंड विच सर्विसेज प्रोवाइड्स डेटा लेक सर्विस इन AWS लेक फॉर्मेशन। तो व्हाट आई वाज ट्राइंग टू शो यू इज स्टोरेज सर्विस। S3 स्टोरेज सर्विस मतलब आपको स्टोर करना है ना फाइल, वो स्टोरेज सर्विस में। Yes. स्टोरेज सर्विस अगर मैं क्लिक करूं तो इसमें S3 आता है इधर, बराबर है। तो अगर मैं यस और इधर EFS भी है, मैनेज फाइल स्टोरेज फॉर EC2। EC2 मतलब इनका ये मशीन ही है, मतलब एक जैसे आपका लैपटॉप होता है तो उनके जो मशीन है वो वर्चुअल मशीन होता है। मतलब तो वर्चुअल मशीन मैं अभी नहीं समझाऊंगा। आपको कुछ पता है डेफिनेशन ओके वर्चुअल मशीन क्या है? नहीं सर हाँ, तो वो आप लिख के ले लो, लेकिन वो होमवर्क के लिए आप खुद डिस्कवर करो व्हाट इज अ वर्चुअल मशीन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है क्योंकि आपको पूरा का पूरा मशीन दिया नहीं जाता है। एक मशीन पे अगर 100 TB का साइज है तो उसमें से बहुत थोड़ा टुकड़ा निकाल के आपको दिया जाता है। तो एक ही मशीन पे 100 लोग भी लॉगिन कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं एक ही टाइम पे। तो वो जब आप एक ही मशीन को मल्टीपल टुकड़ों में बांटते हो तो वो वर्चुअल मशीन बना के देते हो। तो वो वर्चुअल मशीन को EC2 बोलते हैं, इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड। ओके तो EC2 का फुल फॉर्म आप लिख के रख दो। व्हाट इज EC2?
मतलब ये आपको बाद में कभी वीडियो भी आप देख लो, जैसे व्हाट इज़ EC2, जो सर्विसेज के बारे में मैंने आज बोला है इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेना। हाँ, ये सब बेसिक सर्विसेज है। ये आना ही चाहिए, अगर नहीं आएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये एटलीस्ट एक वीडियो देख लो। हाँ, EFS, S3 इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड। तो अभी मैं S3 में जाता हूँ, तो मुझे सिर्फ आपको S3 सर्विस दिखाना था, तो इसलिए मैं S3 में जाऊँगा। और S3 कौन से बिल्डिंग में मेरा ये S3 मतलब मेरा फाइल, ये बकेट किधर मेरा, अगर मैं क्रिएट करता हूँ तो किधर क्रिएट होएगा, मुझे बोलो कौन सा बिल्डिंग में क्रिएट होएगा? बॉम्बे। वेरी गुड। इधर मैं एक बकेट क्रिएट कर सकता हूँ, जैसे लाइक मैं एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ ना, वैसे क्रिएट बकेट करके कर सकता हूँ। तो क्रिएट बकेट करोगे तो ऐसे 8 स्लैब्स करके मैंने क्रिएट किया है, 3 बकेट्स मैंने क्रिएट किया है। और 3 बकेट्स मैंने किधर कौन से रीजन में क्रिएट किया है मुझे देख के बता सकते हो? सेकंड कॉलम एशिया में 2 है, एशिया में, और US में बॉम्बे। एशिया में सिर्फ बॉम्बे में 2 है। हाँ, और एक US में नॉर्थ वर्जीनिया में। मुंबई को अगर आपको एक्सेस करना है तो उसका नाम है AP-South-1। जैसे प्राइमरी की होता है ना, वैसे ये नाम भी होता है, हर एक रीजन का एक नाम है। तो AP मतलब एशिया पैसिफिक, साउथ मतलब एशिया पैसिफिक में हम साउथ ईस्ट एशिया में आते हैं ना। तो AP-South-1 मतलब मैं पहले बिल्डिंग से कनेक्टेड हूँ, ऐसे बोल सकते हो। अभी मैं आपको एकदम सिंपल वे में समझा रहा हूँ, लेकिन आपको समझ में आ रही है ना सर? हाँ सर। US नॉर्थ वर्जीनिया का कोड क्या है? US-East-1 मतलब ये US में है, ईस्ट में है, और कोई तो एक बिल्डिंग है उसको नंबर 1 दिया आपने। अगर मतलब US ईस्ट 2 भी हो सकता था। ओके। और ये बकेट के अंदर मैंने फाइल्स क्रिएट किया है। तो जो भी फाइल क्रिएट किया है इधर डाला है, और इधर आपको दिखेगा कि मेरे सब कुछ क्या है। इधर ये कुछ फाइल्स है ना। तो ये एक्चुअली मैंने ये मेरे वेबसाइट के लिए मैंने एक वेबसाइट बनाया है, और पूरा का पूरा वेबसाइट S3 में स्टोर किया है मैंने एक्चुअली। और वो जो वेबसाइट का जो फाइल्स है, जैसे HTML फाइल्स है या इमेजेस है, ये सब इधर स्टोर किया है बकेट के अंदर। तो अगर मैं ये खोलूँगा तो ये speak.png एक ऑब्जेक्ट है। तो ये ऑब्जेक्ट को अगर मैं अभी मैं HTTP लिंक यूज़ कर सकता हूँ। इधर दिख रहा है आपको ऑब्जेक्ट URL? यस। तो इसका ऑब्जेक्ट URL क्या है? ATSLabs S3 AP.AP-South-1.Amazon ABS समथिंग। तो ये लिंक आपको समझ में आ रहा है? ATSLabs बकेट है। S3 इज द सर्विस, AP-South-1 इज द रीजन, and AWS is the cloud provider, and this is the object name speak.png। तो अगर मैं इसको क्लिक करूँ तो I will get access to that file if it has been given. So right now the access is given, so I can access this file using HTTP link. अभी यही चीज़ आप फाइल सिस्टम में नहीं कर सकते हो, बराबर ना? ये एक ड्राइव की तरह चल रहा है, जैसे गूगल ड्राइव चल रहा है, ये वैसे ही ये चल रहा है। तो मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था कि ये पूरा मेरा वेबसाइट स्टोर्ड है ये फोल्डर में। तो बेसिकली आप किसी भी S3 बकेट को, अगर उसमें बहुत सिंपल सा वेबसाइट है तो उसको आप एक वेबसाइट में बदल सकते हो, पूरा के पूरे वेबसाइट फोल्डर को। तो इधर क्या लिखा है मुझे बोलो? स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग। उसके बाद नेक्स्ट लाइन क्या लिखा है? यूज दिस बकेट टू होस्ट अ वेबसाइट और रीडायरेक्ट रिक्वेस्ट। तो मतलब अगर ये मुझे एक वेबसाइट की तरह इसको यूज करना है, आपने वेबसाइट तो क्रिएट किया है ना, HTML फाइल, CSS फाइल, आपने स्टैटिक वेबसाइट स्टार्टिंग में क्रिएट किया था, याद है? 1-2 अपने स्क्रीन में किया था। तो उसको आपको इंटरनेट पे अभी किसी को शेयर करना है, तो आपको वेबसाइट होस्टिंग करना है, तो आइडियली क्या होता है, आपको एक सर्वर डालना पड़ेगा। लेकिन इधर सर्वर डालने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली वो फाइल को लेके एक सर्वर पे डाल देगा और वो उसको वेबसाइट की तरह ट्रीट करेगा।
तो इसको मैंने एनेबल किया है। एंड दिस इज होस्टिंग टाइप इज बकेट होस्टिंग, मतलब बकेट तो आपको पता चला एक डायरेक्टरी की टाइप का होता है। और उसका जो लिंक है वेबसाइट का वो ये लिंक है atslabs.s3। ये दिख रहा है आपको atslabs s3 वेबसाइट। yes, अभी मैं ये लिंक को एक्सेस करूंगा तो मेरा वेबसाइट मुझे एक वेबसाइट की तरह मिलना चाहिए। तो दिख रहा है मेरा वेबसाइट आ गया, तो index.html लोड हो गया, जो भी फाइल्स है उसके अंदर एक्सेस हो रही है। ये मेरा एक्चुअली वेबसाइट है, लेकिन यही वेबसाइट को मैंने डोमेन नेम पे भी रजिस्टर किया है। अगर मैं atslabs.in करूं, GoDaddy पे मैंने रजिस्टर किया ये वेबसाइट को, और उधर से अंदर ही अंदर मैंने मैं ये लिंक एक्सेस कर रहा हूँ। इधर से आपको समझ में तो नहीं आ रहा कि AWS से मेरा ये फाइल्स आ रहे हैं, बराबर है ना? यस। कुछ डिफिकल्टी हो रही है आपको कुछ समझने में? नहीं सर। ठीक है, तो S3 इलास्टिक फाइल सिस्टम के बारे में थोड़ा मुझे बताओगे? इलास्टिक फाइल सिस्टम मतलब सर ये इजीली स्केलेबल है। और दोनों क्या, दोनों में कॉमन क्या है मुझे वो बोलो। दोनों किस टाइप की सर्विसेज है? आपके ऑप्शंस है, कंप्यूट सर्विस है, डेटाबेस सर्विस है कि स्टोरेज सर्विस है? इलास्टिक कंप्यूट मतलब कंप्यूट स्टोरेज है। नहीं, इलास्टिक फाइल सिस्टम के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। इलास्टिक कंप्यूट ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं, मैंने 3 ऑप्शन दिए ना। मैंने क्या क्वेश्चन पूछा आपको कि इलास्टिक फाइल सिस्टम सर्विस में और S3 सर्विस में, सिंपल स्टोरेज सर्विसेज में, ये दोनों में कॉमन क्या है? ये दोनों किस टाइप के सर्विसेज है? इज इट कंप्यूट सर्विस, इज इट डेटाबेस सर्विस, और इज इट स्टोरेज सर्विस? स्टोरेज सर्विस। वेरी गुड। तो आप जब एक्सप्लेन करते हो तो आपको स्टार्टिंग में ये बोलना चाहिए EFS is a storage service provided by AWS cloud provider. Okay. Both S3 and Elastic File System are storage services provided by AWS cloud provider. ये थोड़ा लिख दोगे डेफिनेशन? ये सॉरी, हाँ सर मैं लिख रही हूँ, ताकि ये सेंटेंस आप थोड़ा प्रैक्टिस कर दो बात करने के लिए ना इंटरव्यूज में। yes. वो लोग बोलेंगे ना प्लीज टेल अस अबाउट सम स्टोरेज सर्विसेज, तो आपको एग्जांपल देना पड़ेगा। yes. So AWS S3 and AWS EFS both are storage services provided by the AWS cloud provider. AWS is a cloud provider, जैसे Google cloud provider है, Azure is a cloud provider, वैसे AWS is also a cloud provider. Okay. Okay. Yes. आपको डिफरेंस बताना है। स्टोरेज सर्विस इज अ ऑब्जेक्ट स्टोरेज सर्विस, इलास्टिक फाइल सिस्टम सर्विस इज अ फाइल सर्विस। Okay. एक ऑब्जेक्ट है, दूसरा फाइल है, ठीक है? Yes sir. Third difference, storage service is organized using buckets and objects and can be accessed using HTTP. Elastic file system is organized as directories and files and can be accessed via the operating systems. लिखा है आपने? Yes sir. थोड़ा रीड करोगे डेफिनेशन? हाँ. Yes sir. S3 and EFS both are storage services provided by AWS cloud provider, and S3 is a object storage services organized by using objects and HTTP links. It is organized using buckets and objects.
sorry, buckets and objects, objects. and the object can be accessed using HTTP link. Okay. And EPS services are organized by directory files via operating system. And the files can be accessed via operating system. Yes. इधर ऑब्जेक्ट एक्सेस हो रहा है, राइट हैंड साइड पे फाइल एक्सेस हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पे एक्सेस HTTP पे हो रहा है, राइट हैंड साइड पे एक्सेस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आपको लॉगिन करके मिलेगा. जो अभी तक आपने यूज किया है कंप्यूटर पूरा लाइफ में, वो एक फाइल सिस्टम यूज किया है. पहले बार आप एक अलग टाइप के सर्विसेज में जा रहे हो जो थोड़ा एक्सपेंडेड है, थोड़ा ज़्यादा देते हैं आपको सर्विस. तो डेटा लेक एक्चुअली अंदर ही अंदर S3 ही यूज़ कर रहा है. डेटा लेक को अगर सब फाइल डालना है, बड़े बड़े फाइल डालना है, तो वो S3 यूज़ करता है. S3 एक बहुत बड़ा डेटा, एक बकेट में बहुत डेटा डाल सकते हो आप. मतलब बिग डेटा के लिए S3 बहुत यूज़ होता है. मुझे लगता है आज के लिए थोड़ा हैवी हो गया है, मतलब इज इट ओके इफ आई स्टॉप एट दिस पॉइंट? I should say.